Hello students, I welcome you all. My name is Vishnu Gupta and I am teaching biology here. Okay. Uh, in the previous classes, I taught you a different topics on the different in a different way, and I think you might have studied those topics. And if you are having any doubt, I told you you can write down in the comment box, so that after completing this chapter I will give you one doubt session also. In that doubt session I will collect all the doubts of this chapter, and I will clear your doubts. Clear? I just want to just request one thing, that if you are liking this video, if you are liking my lectures, liking my hard work, then please press the like button, because what I am seeing that there are not so much likes. So if you don't like, please write down in the comment box these are the topic I am not able to understand, so that I can improve in the next video. And if you are liking the session, please press the like button. Okay, let's start the session. Like as when we do a good job, so we just want anybody encourage us. If anybody does encourage, then that charge our body, that charge our energy. Okay, the same way, if you are liking the session, if you are liking the video, please press the like button. In the sexual reproduction in angiosperm, we have studied almost so many topics, and now this chapter is going to be finished also. Okay, let's start this session with a very good motivational quote. कामयाब अपने लिए नहीं तो उनके लिए बनो, कामयाब अपने लिए नहीं तो उनके लिए बनो जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं. इसका मतलब है कि कभी कभी हम अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं. क्यों डेविएट हो जाते हैं? क्योंकि हम अपना जो एम है उसको भूल जाते हैं. ठीक है, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेस आपको लेनी है, ठीक है, तो आप उनके बारे में भी सोचिए जो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं. वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके गार्जियन हैं, जो आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं. इसीलिए मैंने ये मोटिवेशनल कोट आपके लिए लगाया है. कामयाब अपने लिए नहीं तो उनके लिए बनो जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं. आपके जितने लोग भी आपको, मतलब जितने भी लोग आपसे बिलोंग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे लोग आपको कामयाब देखना चाहें, लेकिन आपके पेरेंट, आपके गार्जियन जो आपके पीछे लगे हुए हैं, जिनसे जिनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो वो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं. तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनको उसके बदले उनको कुछ ना कुछ हम दें. तो उनके लिए हमारा सक्सेस होना ही उनके लिए सब कुछ है. इसीलिए पूरी जी तोड़ मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ लग जाइए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिजल्ट लाइए और कामयाब होइए. ठीक है? Okay, let's start this session with this motivational quote. Yesterday we discussed so many topics, and I ended the lecture with the formation of embryo. I told you about how the embryo formation take place from the zygote, and we studied the formation of dicot embryo and the monocot embryo. Then I told you what provide nutrition, endosperm. So that's why before the formation of embryo, the formation of endosperm starts. Zygote, like as zygote wait for the formation of endosperm, means the zygote get the nutrition from the endosperm. Until the endosperm is not formed, then the zygote cannot go in the further division. That's why endosperm is very important part. So in the yesterday lectures I told you about the endosperm and as well as the embryo, dicot embryo and the monocot embryo, and with this topic we finished that lecture. Okay, now we are going ahead. In this part we are going to discuss about different topic, like as yesterday we discussed about fertilization, means when the pollen grain fall on the stigma, then how the fertilization take place. Then after fertilization what happens? So we studied the natural process, when the pollen grain come in the contact of the any biotic and abiotic component. Now can we have the artificial hybridization? Yes, there are different steps. Like as you observe a different variety surrounding to us, we are having a lot of variety in the plant.
how these varieties developed. These varieties are not the example of the natural phenomenon, natural fertilization. They are the examples of they are the result of the artificial hybridization. So whenever if you will after 12th class, if you will go in the agriculture branch, you will do that graduation and post graduation and research in the agriculture, you will also perform these techniques to develop different varieties. Now how can we develop the different varieties? By using the existing variety. Suppose you are having a particular variety, two varieties, and you want to hybridize them at your own level, by your own, then that process is known as what? Artificial hybridization. Clear? So in the how the artificial hybridization is performed. Clear? Let's see, there are different steps like as emasculation. Now in this word you can see one word is written emasculation and E. So again there is a analytical meaning. E means remove, E means removal, and masculation, masculine sounds like a male part, means if we remove the male part, suppose any flower is there and you want to induce the artificial hybridization, so first of all you have to remove the male part from the flower, otherwise the flower will get fertilized. Means if any flower is bisexual, listen very carefully, if any flower is bisexual, then first step of the artificial hybridization will be removal of anther, and anther is what? Male part. That's why this process is known as what? Emasculation. Clear? And you have to remove that anther in the bud stage. You have to remove the anther in the bud stage, otherwise it just a pollen grain from the anther can fall on the stigma. So to stop contamination, so to stop what? Contamination, ताकि contamination ना हो stigma पे, you have to remove the anther, and that process is known as what? Emasculation. Let's see in this diagram. You are observing that with the help of the scissor we are just cutting the what? Anther, so that the pollen grain of the same flower do not fall on the stigma of the same flower. Clear? Now if you have cut down, you have removed the anther, then other pollen grain can fall on the stigma. Other pollen grain, those are in the contact of the air, those are in the contact of the insect, they can come on the stigma. It is not so you will be sitting there and you will be taking care of that flower. It is not possible. Clear? So that's why the next step will be, the next step is bagging. Means you will cover the flower after removal of anther. In the bisexual flower you will just cover the flower so that any other pollen grain do not fall on the stigma. In this way, in this picture what you are observing, that the flower is covered with a bag, with a butter paper or with any particular paper, so that the flower can get the oxygen also, but there should not be any contamination of the pollen grain. So this method, this step is known as what? This step is known as bagging. Clear? So first of all you will perform the emasculation, removal of anther from the bisexual flower to prevent the contamination. Second, you will perform bagging again for the contamination, so that any contamination, any foreign pollen grain should not come, otherwise it is not controlled pollination. ये कंट्रोल्ड पॉलिनेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर और कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो आपका जो मेथड है वो फेल हो गया, वहाँ पे जो आपकी टेक्निक है वो फेल हो गई. क्लियर है? ठीक है. नाउ वी विल डस्ट द पॉलन ग्रेन. जिस भी फ्लावर में हमें हाइब्रिडाइज कराना है उस पर हमें पॉलन ग्रेन को क्या करना पड़ेगा? डस्ट करना पड़ेगा. डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को. डिज़ायर्ड मीन्स सपोज मतलब व्हाट एवर कैरेक्टर यू रिक्वायर. जैसे कोई प्लांट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है, उसके अंदर डिजीज़ नहीं लगते, तो वो आपके डिज़ायर्ड कैरेक्टर होंगे. मतलब वो आप चाहोगे कि ये प्लांट में ये कैरेक्टर इनकलकेट हो जाए, तो आप क्या करोगे? उन्हीं प्लांट से पॉलन ग्रेन को लेके उस पर डस्ट कर दोगे, और वो प्लांट सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एक वैरायटी है तो उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर अगर प्लांट है तो उसकी एक वैरायटी तो होगी नहीं, उसके बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी. तो हमें उन वैरायटीज़ के बारे में पता लगाना पड़ेगा और वहाँ से हमें पॉलन ग्रेन को क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट करना पड़ेगा. और आप जानते हो कि हम पॉलन बैंक्स भी बना सकते हैं.
तो वी कैन यूज़ द डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन फ्रॉम द पॉलन बैंक्स आल्सो। तो पॉलन बैंक से हमने पॉलन को लेके कहाँ पे डस्ट कर दिया, कहाँ पे उसको गिरा दिया, स्टिग्मा पे। क्लियर। और स्टिग्मा पे जब गिराएंगे तो क्या होगा, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। नाउ यू विल अगेन रीबैगिंग, फिर से रीबैगिंग कर दोगे। रीबैगिंग इसलिए कर दोगे ताकि कोई और फॉरेन पॉलन ग्रेन उस पर ना आके जर्मिनेट होने लगे। समझ में आया। तो इस तरह से सबसे पहले इमेस्कुलेशन, बैगिंग, देन डस्टिंग ऑफ डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन, देन रीबैगिंग, और लास्ट में आप क्या करोगे, टैगिंग। जैसे कोई भी अगर हम क्लोथिंग लेने जाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल लेने जाते हैं तो उस पर एक टैग लगा होता है, प्राइस टैग लगा होता है, या कोई ब्रांड का टैग लगा होता है। सेम एज अगर आप टैग लगा दोगे, मतलब इसका आपने क्या नाम है, हाइब्रिडाइजेशन इस डेट में किया है, ये इस वेराइटी को बिलोंग करता है, मतलब इन दैट टैग ओनली द डिस्क्रिप्शन विल बी रिटन, उसमें वो डिस्क्रिप्शन ही लिखा रहेगा। दैट स्टेप इज नोन एज व्हाट, टैगिंग। तो these are the steps of what, artificial hybridization. And after the artificial hybridization there will be a formation of fruit as well as the seed, and you will have the desired variety and in the seed, and when you will just grow the seed, you will sow the seed, you will get your desired variety. Clear. So what is artificial hybridization and how it can be fruitful? ये फ्रूटफुल कैसे हो सकता है, इसके एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डेवलप द डिज़ायर्ड वैरायटी। डिज़ायर्ड वैरायटी मतलब ऐसी वैरायटी जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिसमें डिजीज़ ना लगे, ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो टॉलरेबल हो, डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट के लिए वो क्या हो, टॉलरेबल हो। तो दीज आर द डिज़ायर्ड traits which you want in the plant. Clear. For that we perform artificial hybridization. Now one question for you, if any flower is unisexual, so out of these steps which step you will not be performed? Listen again, if any flower is unisexual, which step in the among these steps, which step you will not perform? Write down in the comment box. Clear. So it was the topic. It is related to the topic which we studied yesterday about the fertilization. Now come to the next part. After fertilization the embryo is formed, means we are going to study the post fertilization event. After the fertilization what happens, you know that after fertilization zygote is formed, zygote develop into the embryo, and in the embryo development of embryo we discussed already. Now come to the next part. There are two type of embryo, dicot embryo and the monocot embryo. Now in this diagram you can see the dicot embryo. There are different part of the dicot embryo. See, the plumule is there, then cotyledons, you know that, then hypocotyl, then radicle, then root cap. This is the diagram of the dicot embryo, and dicot embryo have these parts. Now in these parts what is epicotyl? You are observing hypocotyl, but you are not observing this diagram epicotyl. So EP wherever you are having EP word, epidermis, okay, like as epidermis, so it is above. So epicotyl, cotyl sound, cotyledon, so above the cotyledon, above the cotyledon there is a region what, that is known as epicotyl, which terminate to the plumule. जो किस पे टर्मिनेट होगा, प्लम्यूल पे टर्मिनेट होगा। क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, हाइपोकॉटिल है। हाइपोकॉटिल क्या है, हाइपो बिलो द कॉटिलीडन। आप ये कॉटिलीडन देख रहे हो ना, इसके लेवल से ये नीचे होगा, मतलब अगर कॉटिलीडन से के लेवल से अगर कोई पार्ट उसके नीचे है, बिलो द लेवल ऑफ द कॉटिलीडन है, तो उसको क्या बुलाएंगे हम, हाइपोकॉटिल। और हाइपोकॉटिल यू आर ऑब्जर्विंग, हाइपोकॉटिल कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, रेडिकल और रूट कैप पे। तो मैं पता है रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव पार्ट होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, रूट कैप बुलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द व्हाट, डाइकॉट एम्ब्रियो, द डायग्राम ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो। क्लियर. So what we are studying, dicot embryo, the different parts of the dicot embryo. Now what are the function of these part? The epicotyl will provide the embryonal axis, वो embryonal axis provide कराएगा, और जो hypocotyl है वो भी embryonal axis है, लेकिन किसके लिए, radical के लिए। तो these are the part of the dicot embryo. Now come to the monocot embryo. Diagram is very important. Diagram is asked in the board exam, so please prepare the diagram and the parts which is labeled in this diagram. Now come to the monocot embryo. Now you know that the monocot embryo is having only one cotyledon, so that cotyledon is not known as cotyledon, but it is known as scutellum. In this diagram you can see
The scutellum is there. This is scutellum. The scutellum is what? Scutellum is a cotyledon. In the monocot, the cotyledon is known as what? Scutellum. Now you can see there is a shoot apex. Shoot apex means the part which is going to be developed in the shoot, that develop above the ground, and you are observing on the shoot there is a sheath. Sheath means covering, that is known as coleopetile. Clear? So on the shoot apex, on the shoot part, there is a what? Embryonal axis, the sheath, that is known as what? Coleopetile. Clear? One part you are observing epiblast. Actually when the formation of monocot embryo, तो only one cotyledon is formed, other cotyledon just persist, मतलब वो cotyledon develop नहीं होता है. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है इसकी डेफिनेशन. जो ईपीब्लास्ट है वो रिमेन है, मतलब वो बचा हुआ पार्ट है किसका? सेकंड कॉटिलीडन का. मतलब सेकंड कॉटिलीडन जो है वो पूरी तरह से डेवलप तो हो नहीं पाता, लेकिन ये ईपीब्लास्ट कुछ ग्रास फैमिली में ही ऑब्जर्व किया जाता है. सारे प्लांट में, सारे एम्ब्रियो में, सारे मोनोकॉट एम्ब्रियो में इस पार्ट को ऑब्जर्व नहीं किया जाता. कुछ ग्रासेस की फैमिली है, उसी में ईपीब्लास्ट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो. तो ईपीब्लास्ट है क्या? दैट इज़ द रिमेन ऑफ द सेकेंड कॉटिलीडन. मतलब सेकेंड कॉटिलीडन बन तो रहा था लेकिन वो बन नहीं पाया, वो बच गया, उसी को हम क्या बुलाते हैं? ईपीब्लास्ट. नाउ एट द लोअर साइड यू आर ऑब्जर्विंग कोलियोराइजा. At the lower side of the embryo you are observing what? Coleorhiza. And coleorhiza is a sheath above the radicle. वो किसके ऊपर की शीथ है? रेडिकल के ऊपर की शीथ है. तो याद करना बहुत ईजी है. कोलियोपेटाइल में देखो P आ रहा है, कोलियोपेटाइल में P आ रहा है. ठीक है, तो प्लम्यूल में भी P आ रहा है. तो प्लम्यूल के ऊपर, मतलब जो शूट रीजन के ऊपर जो शीथ होगी उसको क्या बुलाएंगे? कोलियोपेटाइल बुलाएंगे. और यहाँ पे देखो कोलियोराइजा में अगर आप देखो तो कोलियोराइजा में क्या आ रहा है? आर आ रहा है. कोलियोराइजा आर से क्या इंडिकेट कर रहा है? रेडिकल और रूट कैप. तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हो कि कोलियोराइजा और कोलियोपेटाइल का क्या फंक्शन होता है. ठीक है, and they are present in the embryo. So that's why we are studying what? The part of the embryo. Now these two topics are finished, dicot embryo and the monocot embryo. Development we studied earlier. हमने डेवलपमेंट पहले से ही पढ़ रखा है, लेकिन मैंने डायग्राम इसलिए लगा दिया क्योंकि डायग्राम पूछा जाता है. डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स, और आपको हर एक पार्ट का फंक्शन भी क्लियर हो गया. शीथ का मतलब हो गया लेयर. जैसे कोई शीथ है, वो प्रोटेक्टिव शीथ है, तो उसी को हम शीथ मतलब लेयर बोलते हैं. तो कोलियोपेटाइल और कोलियोराइजा क्या है? शीथ है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर होते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सीड. आफ्टर फर्टिलाइजेशन कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट हैविंग वन स्लाइड. एक स्लाइड है मेरे पास, मैंने इसको लगा दिया है आपके लिए, देखो कन्वीनियंट के लिए. देखो इस स्लाइड में यू कैन सी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मतलब क्या क्या जो पार्ट होते हैं फ्लावर में उनके साथ क्या होता है. देखो इसमें लिखा हुआ है ओवरी चेंज इन द फ्रूट, ओवरी वॉल पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल बना लेती है, ओव्यूल सीड बना लेती है, ओव्यूल रही है. फ्यूनिकल आपने पढ़ा था ना, फ्यूनिकल जो है अटैच कर रहा था. ठीक है, वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था. ठीक है, वो तो मोस्टली ब्रेक हो जाता है या तो सीड में प्रेजेंट होता है. जैसे अगर आपने पी मतलब जो मटर होती है उसको पॉड से अगर निकाला होगा तो उसमें तो कोई छोटा सा पार्ट लगा होता है, वही क्या है? फ्यूनिकल है. उसके बाद हाइलम में ही रहता है. जैसे ग्राम जो है या जो मटर है वो अपने पॉड से अटैच होती है, तो जिस स्कार लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है उसको क्या बुलाते हैं? हम हाइलम बुलाते हैं. न्यूसेलस तो मोस्टली डीजनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनके पास न्यूसेलस बचा रह जाता है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे. फिर आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट आपने पढ़ रखा है ओव्यूल के डायग्राम में. ये सब पूरा ओव्यूल का डायग्राम वाला पार्ट है, याद कर लेना उसको. नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड देख लेना प्रीवियस लेक्चर्स में. तो जो आउटर इंटेगुमेंट है और इनर इंटेगुमेंट है वो दोनों सीड कोट बना लेते हैं, मतलब सीड के ऊपर जो हार्ड कवर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो बना लेते हैं. माइक्रोपाइल आप देख ही सकते हो, चना का अगर सीड ले लो तो उसमें एक बहुत स्मॉल पोर दिखता है, उसी से ऑक्सीजन और वाटर इनटेक करते हैं सीड, तो दैट इज़ नोन एज व्हाट? माइक्रोपाइल. उसके बाद जो एम्ब्रियो सैक होता है, मतलब जो ओव्यूल के अंदर आपने एम्ब्रियो सैक पढ़ा था, उसमें देखो सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है. एग सेल जो होता है वो तो तुम्हें पता है एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा. एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो किस में चेंज हो जाएगा? एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा. समझ में आया? तो इस तरह से जितने भी पार्ट्स हैं उनका कोई ना कोई फॉर्मेशन, उनका कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो जाता है. या तो वो डीजनरेट हो जाते हैं या तो वो डिफरेंट पार्ट में चेंज हो जाते हैं. और जो फ्लावर के एसेसरी पार्ट्स होते हैं
जैसे कैलिक्स आपने पढ़ा था, सेपल्स, सेपल्स अटैच रहता है कहीं किसी फ्रूट में आपने देखा होगा, जैसे आपने ब्रिंजल को ऑब्जर्व किया होगा, आपने चिली को ऑब्जर्व किया होगा, आपने टोमेटो को ऑब्जर्व किया है, तो जो टोमेटो में, ब्रिंजल में जो ग्रीन पार्ट ऊपर की तरफ लगा होता है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, सेपल्स है। पेटल्स यूजुअली फॉल हो जाते हैं, मतलब जो पेटल्स होते हैं वो तो गिर जाते हैं, वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो सेपल्स हैं वो किसी फ्रूट में बचे रह जाते हैं। तो ये इसलिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद किस पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सीड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीड। अब देखो सीड क्या है, सीड जो है, वैसे तो सीड हम यही जानते हैं, सीड हम खाते हैं, या सीड फार्मर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि वो उसी सीड से प्लांट्स को कल्टीवेट करता है, मतलब कल्टीवेशन पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, सीड। अगर सीड्स ना हो तो वो कल्टीवेट क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट प्रोजेनी कैसे आएगी, नेक्स्ट प्लांट कैसे आएंगे। तो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में जो रिजल्ट है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सीड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे फूड को, हमारे प्लांट्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सीड में क्या होता है, सीड में एम्ब्रियो होता है और वो एम्ब्रियो बाद में प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन मेनी चेंजेस आर ब्रॉड, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, चेंजर नहीं, ये चेंजेस होगा, इसको सही कर लेना, ठीक है। आर ब्रॉड अबाउट इन द ओव्यूल ड्यू टू विच ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ओव्यूल पूरा किस में चेंज हो जा रहा है, सीड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। आपको मैंने बताया ना आउटर इंटेगमेंट क्या था, इनर इंटेगमेंट क्या था, आप डायग्राम देख सकते हो इन द प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जो आउटर इंटेगमेंट है वो क्या बना लेगा, वो टेस्टा बना लेगा, और जो इनर इंटेगमेंट है वो टेगमेन बना लेगा। ये दोनों क्या होते हैं, सीड कोट होते हैं। जो आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट होते हैं वो होते क्या है, सीड कोट होते हैं, ठीक है। और सीड के और कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, कॉटिलीडन्स हो सकते हैं, सीड कोट हो सकता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस हो सकते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी, जैसे ये डाइकॉट सीड का डायग्राम है और ये मोनोकॉट है, ठीक है। तो दो टाइप के क्योंकि प्लांट होते हैं तो ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है। अब आप देख सकते हो डाइकॉट सीड में क्या क्या है, सीड कोट है जो प्रोटेक्ट करेगा, कॉटिलीडन जिसमें फूड स्टोरेज है, उसके बाद शूट एपिकल मेरिस्टेम, तुम्हें पता है ये एम्ब्रियोनल पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो गया ये एम्ब्रियोनल पार्ट हो गया। अब यही एम्ब्रियोनल पार्ट जो है जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये डिफरेंट पार्ट में, मतलब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में ग्रो होने लगेगा। और जो एंडोस्पर्म है वो क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। सेम एज मोनोकॉट में, देखो मोनोकॉट में एक लेयर है पेरिकार्प है। पेरिकार्प आपको पता है सीड के ऊपर जो फ्रूट वॉल होती है, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो क्या होती है, पेरिकार्प होती है। एंडोस्पर्म पता है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये वाला, ये एम्ब्रियोनल पार्ट है, ठीक है। यही जो है वो क्या है, एम्ब्रियोनल पार्ट है। आपको पता है कॉटिलीडन को हम क्या बुलाते हैं, स्कोटेलम बुलाते हैं। आपने ये भी पढ़ रखा है, कोलियोपेटाइल, प्लम्यूल, रेडिकल और कोलियोराइजा। तो ये जो पार्ट हो गया सीड का, ये कौन सा पार्ट हो गया, एम्ब्रियोनल पार्ट हो गया, समझ में आया। तो एम्ब्रियोनल पार्ट ये हो गया सीड का। तो इस तरह से सीड में क्या क्या पार्ट होते हैं, एक तो कॉटिलीडन होता है, सीड कोट होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियोनल पार्ट्स होते हैं जो बाद में यही जो है प्लांट में ग्रो होते हैं। समझ क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सीड क्या है और सीड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो आउटर इंटेगमेंट है वो टेस्टा बनाएगा, और जो इनर इंटेगमेंट है वो क्या बना लेगा, वो टेगमेन बना लेगा। तो इस तरह से दोनों लेयर सीड कोट बना लेते हैं जो प्रोटेक्टिव फंक्शन में प्रोटेक्टिव होते हैं। क्लियर है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो आपने पढ़ा था ना एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का क्या रोल है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो कुछ सीड ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर ले जाते हैं, मतलब जो भी एंडोस्पर्म उनको मिलता है वो पूरा कंज्यूम कर ले जाते हैं। तो जब भी उनका जब डेवलपमेंट ख़त्म होता है एम्ब्रियो का, तो उनके पास एंडोस्पर्म बचा ही नहीं रह जाता है। तो ऐसे सीड्स को क्या बुलाते हैं, नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस सीड, मतलब जिनके पास क्या ना बचा रह जाए, एंडोस्पर्म ना रह जाए। एल्बुमिन का यहाँ पे मतलब है न्यूट्रिशन से, मतलब उनके पास वो न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है जब उनका डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब उस जितना भी एंडोस्पर्म था वो सब क्या कर लेंगे, वो कंज्यूम कर लेंगे। रेसिडुअल मतलब बचा रह जाना, कोई भी उनके पास एंडोस्पर्म नहीं रह जाता। जैसे पी है, ग्राउंड नट्स हैं, बीन्स जितने भी होते हैं, तो उनके पास कोई एंडोस्पर्म नहीं रह जाता क्योंकि वो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में यूज़ कर लेंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है एल्बुमिनस, एल्बुमिनस आपको यहीं से नाम से क्लियर हो गया कि यहाँ पे एंडोस्पर्म परसिस्ट मतलब वो बचा रह जाएगा, रिमेन मतलब वो लेफ्ट आउट, दे विल नॉट कंज्यूम ऑल द एंडोस्पर्म, मतलब जितना भी एंडोस्पर्म है वो पूरा नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, तो कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, बच जाएगा, दैट इज़ नोन एज व्हाट, एल्बुमिनस सीड्स। ऐसे सीड्स को एल्बुमिनस सीड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, वीट है, मेज़ है, कैस्टर है, बरले, सनफ्लावर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एल्बुमिनस सीड्स। क्लियर है, ठीक है। कोकोनट भी आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि कोकोनट मैंने कल बताया था आपको कि उसमें एंडोस्पर्म तो हम देख ही सकते हैं ईजिली। जो कोकोनट वाटर है, जो वाइट कर्नल पार्ट है, वो क्या है, वो एंडोस्पर्म ही तो है, ठीक है। तो इस तरह से दो टाइप के सीड्स हो गए, किसके बेसिस पे हो गए, एंडोस्पर्म के बेसिस पे हो गए कि एंडोस्पर्म है कि नहीं है। क्लियर है, ठीक है। पहले से तो एंडोस्पर्म सब में रहेगा, लेकिन बाद में एंडोस्पर्म केवल उसी में बचा रह जाएगा जिसने पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर रखा है। तो इस तरह से दो टाइप के सीड हो गए, दैट इज़ एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो आपने पढ़ा था ना कि न्यूसेलस होता है ना, ओव्यूल के डायग्राम में आपने पढ़ रखा है, न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस डायप्लॉयड होते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब जो न्यूसेलस है वो वैसे तो मोस्टली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन न्यूसेलस डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन द न्यूसेलस इज़ आल्सो परसिस्ट मतलब बचा रह जाता है। कुछ सीड्स ऐसे देखे गए हैं जिसमें न्यूसेलस बचा रह जाता है। दो सीड्स, इसका एग्जांपल भी मैंने लिख दिया है, ब्लैक पेपर एंड बीट, इन दोनों सीड्स में हम न्यूसेलस के रेमिनेंट्स को, मतलब जो रेसिडुअल पार्ट है, जो परसिस्टेंट पार्ट है न्यूसेलस का, वो देखा जाता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पेरिस्पर्म। अब देखो याद करना बहुत ईजी है, बॉटनी में जहाँ पे भी स्पर्म वर्ड आ जाए उसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी मेल गैमीट से रिलेटेड है। स्पर्म या स्पर्मा, उसका मतलब ये होता है सीड। तो अब याद रखना, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है, तो सीड के पार्ट है ये सब। तो स्पर्मा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सीड हो गया। पेरिस्पर्म का मतलब हो गया सीड के ऊपर जो सेल्स होती है उनको हम पेरिस्पर्म बुलाते हैं, उन सेल्स का नाम क्या है, न्यूसेलस है, ठीक है। तो पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में आप नाम के बेसिस पे ही डिफरेंस बता सकते हो। आपको मैंने बता रखा है, कार्प मतलब क्या होता है, कार्प मतलब होता है फ्रूट से रिलेटेड है, और स्पर्म किससे रिलेटेड है, सीड से रिलेटेड है। तो आप कभी अपनी पूरी लाइफ में ये वर्ड भूल नहीं सकते हो कि पेरिस्पर्म क्या है और पेरिकार्प क्या है। पेरिकार्प फ्रूट का पार्ट होता है और पेरिस्पर्म सीड का पार्ट होता है। और पेरी मतलब होता है पेरीफेरल रीजन, आउटर रीजन, जो सीड के ऊपर जो न्यूसेलर सेल्स हैं उनको हम पेरिस्पर्म बुलाते हैं, और जो फ्रूट के ऊपर जो वॉल है, जो लेयर है, उसको हम फ्रूट वॉल मतलब पेरिकार्प बुलाते हैं, ठीक है। अब देखो डॉर्मेंसी, आपके घर में जो ग्राम के सीड रखे होंगे और भी बहुत सारे सीड्स रखे होंगे जिनको आप स्प्राउट्स के फॉर्म में खाते हो, जिनको आप मतलब रेसिपी उसकी बना के खाते हो, तो एक्चुअली वो लिविंग है, मतलब वो लिविंग पार्ट है। जो सीड्स होते हैं वो लिविंग पार्ट उनको कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि वो डॉर्मेंसी स्टेज में है। डॉर्मेंट मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज में है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे आपने विंटर्स में लिजर्ड को देखा होगा, तो लिजर्ड जो है ऐसा नहीं है कि वो डेथ हो गई है, वो डॉर्मेंट स्टेज में चली गई, ठीक है, जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। सेम एज जो सीड हैं, जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन होती है उनके लिए, तो वो भी किस स्टेज में चले जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, क्वाइसेंट स्टेज में चले जाते हैं, जिसको हम डॉर्मेंसी के नाम से जानते हैं। समझ में आए। लेकिन जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे आप सीड लेते हो, उसको सोक कर देते हो वाटर में, तो देखते होगे स्प्राउट्स उसमें से सीड जर्मिनेट होने लगता है, तो उसकी डॉर्मेंसी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल गया और उसको वाटर भी मिल गया जो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन थी। समझ में आया। कुछ सीड्स को वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब उनको ड्राई कंडीशन चाहिए होता है। जैसे ग्राम के सीड्स को आप वेट करके नहीं रख सकते, जो वीट है उसको आप वेट करके नहीं रख सकते। बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिनको हम ड्राई कंडीशन में ही रखते हैं, उनके वाटर को डिहाइड्रेट कर देते हैं, मतलब उनको पूरी तरह से सुखा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स हैं जैसे पी, जैसे अब धीरे धीरे पी का सीज़न नहीं है, लेकिन आपको तब भी पी मिल जाती है। आपने देखा होगा जब आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हो तो आप पी मांगते हो, मटर मांगते हो, तो आपको एक पैकेट देता है, और वो पैकेट कहाँ से निकाल के देता है, फ्रीजर से निकाल के देता है। इसका मतलब है उस पी को रिजर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत लो टेम्परेचर चाहिए। और वहीं पे अगर हम दूसरे सीड्स की बात करें तो वो क्या है, वो उनको ड्राई कंडीशन चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आपको मैंने माइक्रोपाइल का पहले ही बता दिया कि बोल होता है, उसी के थ्रू जो है ऑक्सीजन और वाटर सीड के अंदर एंटर करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है सीड से रिलेटेड, इसलिए मैंने इन स्लाइड्स में इसको लिख रखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्रूट। अब आ जाओ फ्रूट पे। सबको अच्छा लगता है, बहुत सारे फ्रूट्स आप खाते हो, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट वॉल होती है, ठीक है, आपने ओवरी पढ़ रखा है ना, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी,
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में आपने क्या देखिए, ये पार्ट में एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये स्टिग्मा हो गया, ये पार्ट स्टिग्मा है, ये था स्टाइल, और ये पार्ट क्या था, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या थे, ओव्यूल थे। ये पार्ट क्या था, ओव्यूल था। अब देखो फर्टिलाइजेशन के बाद ये पार्ट तो सीड में चेंज हो गया, ओव्यूल जो है वो किस में चेंज हो गया, सीड में। तो जो ओव्यूल के जितने भी पार्ट हैं, वो चाहे इंटेगमेंट थे, चाहे माइक्रोपाइल थे, चाहे हाइलम था, बहुत सारे जो पार्ट थे दे ट्रांसफॉर्म, वो कोई ना कोई पार्ट में ज़रूर चेंज हो गए। और सीड के अंदर क्या था, जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो में चेंज हो गया। समझ में आया? अब व्हाट अबाउट द ओवरी, ये जो ओवरी है इसके साथ क्या होगा, इट विल राइपन। फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी राइपनिंग होगी, क्योंकि जो चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओवरीज को किस में चेंज कर देते हैं, फ्रूट में चेंज कर देते हैं। तो मतलब ईजिली वी कैन से दैट राइपेंड ओवरी इज़ नोन एज व्हाट, फ्रूट। जो ओवरी है वही जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो राइप हो जाती है, मतलब वो चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या बुलाते हैं, फ्रूट बुलाते हैं। और जो ओवरी की वॉल होती है वही पेरिकार्प, मतलब फ्रूट की प्रोटेक्टिव वॉल हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ओवरी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लेट्स सी। सो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जो ओवरी है वही फ्रूट में चेंज हो जाएगी। अब देखो जो फ्रूट है, दो वैसे तो बहुत टाइप के फ्रूट्स होते हैं, आपने 11 में पढ़ भी रखा है, लेकिन यहाँ पे इतना फ्रूट का डिस्क्रिप्शन है नहीं, इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एलिबोरेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दो टाइप के फ्रूट होते हैं। अगर आप कोई भी फ्रूट खाओ तो आपको जूसी लगे, अगर वो आपको लगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा जूसी फ्रूट है, तो जान लो वो फ्लैशी है। और अगर आप कोई फ्रूट खाओ, जैसे ग्राउंडनट खाते हो, तो आपको जूसी थोड़ा ना लगता है। आप अगर मस्टर्ड सीड खाते हो तो आपको जूसी नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे सीड्स जो आपको ऐसे फ्रूट जो आपको जूसी लगे तो जान लो वो फ्लैशी है, और ऐसे फ्रूट जिनको आपको कोई जूसी फॉर्म ना लगे तो जान लो वो ड्राई फ्रूट है। तो इस तरह से दो टाइप के यहाँ पे मैंने मेन कैटेगरी लिख दी है फ्रूट की, दैट इज़ द फ्लैशी फ्रूट एंड द ड्राई फ्रूट। तो फ्रूट इज़ क्लियर, फ्रूट क्लियर हो गया कि फ्रूट क्या है, फ्रूट की वॉल को क्या बुलाते हैं। अब देखो आपने कौन कौन से फ्रूट खाए हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। आपने एप्पल तो कंफर्म खाया होगा, आपने स्ट्रॉबेरी भी खाया होगा, ठीक है, आपने ऑरेंज भी खाया होगा, आपने मैंगो, मतलब यू हैव ईटन अ लॉट ऑफ फ्रूट, उसमें कोई लिस्ट बनाने की नीड नहीं है, आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे। अब आपको बहुत अमेजिंग फैक्टर पता लगने जा रहा है कि आपने झूठा फल भी खाया है। अब ये क्या हो गई, झूठा ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है, चलो इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फॉल्स फ्रूट। झूठा मतलब वो झूठा नहीं है, जैसे किसी और ने खा लिया वो वाला झूठा नहीं है, ये झूठा है, मतलब फॉल्स फ्रूट है। अब फॉल्स फ्रूट क्या होता है, अरे ये कौन सी बात होती है, फ्रूट तो सारे फ्रूट होते हैं। फॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉल्स का मतलब बायोलॉजी के टर्म में ये है कि अगर ओवरी, जैसे आपने यहाँ पे लिख रखना है ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज होती है, समझ में आया? ठीक है, अगर ओवरी एक्सेप्ट ऑफ द ओवरी, मतलब अगर ओवरी के अलावा और भी कोई पार्ट फ्रूट में चेंज हो जाए, तो और कौन सा पार्ट चेंज हो सकता है। ओवरी किसके ऊपर अरेंज होती है, आपको पता है, थैलेमस। प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आप पढ़ोगे फ्लावर का डायग्राम, तो फ्लावर के डायग्राम में मैंने आपको रिसेप्टेकल और थैलेमस के बारे में बता रखा था कि थैलेमस जो होता है वो बेसल पार्ट होता है फ्लावर में। फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो किस पे सिचुएटेड होते हैं, थैलेमस पे, स्वेलन पार्ट होता है। When the thalamus also participate in the fruit formation, जब थैलेमस में भी फ्रूट फॉर्मेशन में आ जाता है, तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ था ना, मतलब ये तो एक सीधी बात थी कि ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज होती है। तो अगर कोई और पार्ट अगर फ्रूट में चेंज हो रहा है तो उसको हम ट्रू फ्रूट ना बुला के क्या बुलाते हैं, फॉल्स फ्रूट बुलाते हैं। तो भाई जिन्होंने एप्पल खाया था उन्होंने झूठा फल खाया था, याद कर लो, ठीक है। ये देखो मैंने कुछ फॉल्स फ्रूट के यहाँ पे डायग्राम लगा रखे हैं, ये एप्पल है, ठीक है, और ये स्ट्रॉबेरी है। अब एप्पल में देखो जो थैलेमस है वो भी फ्रूट के फॉर्मेशन में आ गया, भाई ये फ्रूट ही तो है, ये फ्रूट के पार्ट है। अब फ्रूट के पार्ट में देखो थैलेमस भी दिख रहा है, मतलब ओवरी तो है ही, मतलब ओवरी का तो फॉर्मेशन होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे थैलेमस भी पार्टिसिपेशन कर रहा है फ्रूट में, तो इसीलिए हम इस फ्रूट को क्या बुलाते हैं, फॉल्स फ्रूट बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, देखो ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, मैंगो, गुआवा। फॉल्स फ्रूट जिसमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर दे तो वो फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। अब देखो एक और टाइप का फ्रूट होता है, पार्थेनोकार्पी। फर्स्ट चैप्टर में आपने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रखा है, आपके डाउट में था पार्थेनोकार्पी क्या होता है, मैंने क्लियर किया था। पार्थेनोकार्पी मतलब यहाँ पे क्या है, पार्थेनो मतलब वर्जिन, मतलब जहाँ पे रिप्रोडक्शन ना हो, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो। तो अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तब भी फ्रूट डेवलप हो जाए, ऐसा पॉसिबल है।
ठीक है। जैसे नाउ अ डेज इफ़ यू ईट द ग्रेप्स, अगर आप इस टाइम जो ग्रेप्स खाते होगे, ठीक है, तो ग्रेप्स में सीड नहीं होते। ऐसे फ्रूट जो इस टाइम डेवलप किए जाते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, जान लो वो कौन से फ्रूट हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। एक्चुअली पार्थेनोकार्पी जो टेक्निक है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, मतलब अपने आप भी हो सकती है, और इंड्यूस्ड भी की जा सकती है। तो जो पार्थेनोकार्पी मतलब पार्थेनोजेनेसिस जो टेक्निक है उसको हम इंड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे इंड्यूस कर सकते हैं? अगर हम कुछ हार्मोन्स का यूज़ करें, अगर हम स्टिग्मा पे कुछ हार्मोन्स का यूज़ करें, स्टिग्मा पे, ओवरी पे, जैसे जिब्बेरेलिन, आपने पढ़ रखा है ना 11 में, जिब्बेरेलिन, ऑक्सिन, और आई थिंक आपने 11 में ये भी पढ़ रखा है कि ये सब हार्मोन, साइटोकाइनिन, ये सब हार्मोन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब है इफ़ यू रिक्वायर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अब देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की सबसे बड़ी एडवांटेज होगी कि दे विल नॉट हैव सीड, उनके अंदर सीड ही नहीं होगा। अगर सीड नहीं होगा तो अच्छी बात है कि आप आराम से खा लोगे, लेकिन आपको पता है सीड की एडवांटेजेस क्या है। अगर आप पूरी तरह से सीड ख़त्म ही कर दोगे तब तो प्लांट कहाँ से डेवलप होंगे? फ्रूट तो खा लोगे, बाद में धीरे धीरे फ्रूट सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर फ्रूट ही नहीं पाओगे, तब तो तुम्हें टॉफ़ी ही खानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो हम स्पॉन्टेनियस पार्थेनोकार्पी भी होता है और इंड्यूस भी किया जा सकता है। ठीक है, और अगर इंड्यूस करेंगे, ठीक है, या स्पॉन्टेनियस भी है या अपने आप भी है, जैसे जो बनाना है, बनाना इज़ अ नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, वो नेचुरल है, उसमें कोई भी किसी ने भी उसको इंड्यूस नहीं किया है, वो नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, उसमें कोई भी इस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं। ग्रेप की कुछ वैरायटी भी हैं जो नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, जिनके अंदर सीड नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बनाना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से व्हाट वी केम टू नो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक फ्रूट और सीड क्लियर हो गया कि फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगा दिए हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। डॉर्मेंसी आपको मैंने बताया ना कि डॉर्मेंट स्टेज में जा जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। अब कोई ऐसे कुछ स्पीसीज़ को देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा पीरियड तक डॉर्मेंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे एक डेटा है, देखो, द ओल्डेस्ट सीड ल्यूपाइनस आर्किटस एक्सकेवेटेड, जिसको खोजा गया, जिसको मतलब डिग करके निकाला गया, कहाँ पे? आर्कटिक टुंड्रा में, जब एक्सकेवेशन हो रहा था वहाँ पे, तो ये सीड मिला, और ये सीड जर्मिनेट किया 10,000 ईयर्स के बाद, मतलब 10,000 ईयर की डॉर्मेंसी पीरियड में था। सोचो इतना लंबा पीरियड डॉर्मेंसी स्टेज में था ये। उसके बाद अभी जल्दी में एक रिसेंटली रिकॉर्ड मिला है, वो है क्या नाम है, डेट पाम के सीड का, जिसका साइंटिफिक नेम फोनिक्स डैक्टिलीफेरा है, जिसको किंग हेरोड्स पैलेस से निकाला गया था। एक्सकेवेशन जब वहाँ हो रहा था, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होता है, वो खुदाई वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे उनको ये सीड मिला था जो 2000 ईयर्स ओल्ड की इसमें वायबिलिटी थी। वायबल मतलब जितने टाइम तक वो एक्टिव रहे, वो जब तक एक्टिव रहेगा तो उसको, उस टाइम पीरियड को हम क्या बुलाते हैं? वायबिलिटी। समझ में आया? तो ये सीड वायबल थे। तो इस तरह से ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं कि सीड की डॉर्मेंसी इतने सालों तक भी देखी गई है। क्लियर है? ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, उनका किसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आ जाओ, 2 टॉपिक और बचे हैं इस लेसन में, ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ, 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखो एपोमिक्सिस क्या है। एपोमिक्सिस एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया सीड का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो किस में चेंज हो जा रहा है? सीड में चेंज हो जा रहा है, और सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो भी है। ठीक है, तो मतलब सीड जो है वो तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। ठीक है, और अभी आपको मैंने एक फ्रूट के बारे में बताया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में क्या बताया कि इसका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन का भी रिजल्ट है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट, ओवरी जो है फ्रूट में चेंज हो रही है, और ओव्यूल किस में चेंज हो जा रहा है? सीड में चेंज हो जा रहा है। और हमें एक ऐसा भी फ्रूट पता लगा, बनाना, जो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आया कि क्या विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का भी डेवलपमेंट हो सकता है? अगर कोई सीड है
और और उसको मतलब वो डेवलप हो रहा है, क्या वो डेवलप हो सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन? अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या सीड का डेवलपमेंट हो सकता है? तो यस, हो सकता है। उसी टेक्निक को हम क्या बुलाते हैं? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है वो हम कह सकते हैं को अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कैन यू कंसीडर दैट रिप्रोडक्शन इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नो, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो ये फीचर ही है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न होता है मेल गमीट और फीमेल गमीट का। अगर दोनों नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फ्यूज़न नहीं हो रहा है, तो वी कैन नॉट कंसीडर दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फुल्ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंप्लीटली उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस तरह से एपोमिक्सिस एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, एपोमिक्सिस एक ऐसी टेक्निक है, मतलब ऐसा मेथड है जिसके थ्रू सीड का डेवलपमेंट होता है, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन, अब आपकी क्यूरोसिटी बढ़ गई होगी कि सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, जो एम्ब्रियो है वो कैसे आएंगे, मतलब इस तरह की क्या होगा। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने जो ओव्यूल का डायग्राम पढ़ रखा है, लेट्स सी वंस मोर द डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का एक बार मैं डायग्राम आपको दिखा के फिर आपको बहुत एकदम क्लियर कर दूंगा मैं कि किस तरह से विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, चलो एम्ब्रियो सैक में ही आ जाते हैं, क्योंकि यही पार्ट है जो सीड के अंदर मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, मतलब सीड का फॉर्मेशन मेनली यही पार्ट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें सेल्स हैं, इसमें जो आपने एग सेल पढ़ रखा है, तो एग सेल पता है आपको, यही एम्ब्रियो बना लेता है, यही जाइगोट बनाता है और यही किस में चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये तो कंफर्म है, ये तो रिकरेंट है। रिकरेंट मतलब जो जो प्रेजेंट है, मतलब जो एग है वो तो एम्ब्रियो में चेंज होगा ही होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा जाइगोट में फॉर्म करने के बाद। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ सेल्स हैं, सिनर्जिड है, एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? न्यूसेलस बुलाते हैं। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं उनको क्या बुलाते हैं? न्यूसेलस। मतलब कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जो प्रेजेंट हैं। अगर मान लो जैसे मन में क्वेश्चन आ गया होगा, यार ये एपोमिक्सिस में सीड का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड में चेंज हो सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं? समझ में आया? तो एक तो एग तो है ही है कि एग जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड में चेंज हो सकता है, लेकिन एग अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन चेंज होगा तो वो हैप्लॉयड सीड्स होंगे, वो सीड्स क्या हो जाएंगे? हैप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो एग है, ठीक है, मतलब जो हैप्लॉयड है वो सीड में चेंज नहीं होता, जो डैप्लॉयड एग है। अब डैप्लॉयड एग कैसे होगा? अगर मान लो मेगास्पोर जो है, आपने मेगास्पोरोजेनेसिस जो पढ़ रखा है उसमें आपने पढ़ रखा था कि मेगास्पोर हैप्लॉयड होता है और मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है? डैप्लॉयड होती है। बहुत ध्यान से सुनना, मेगास्पोर मदर सेल डैप्लॉयड होती है और मेगास्पोर क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। अगर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो ही ना, इफ़ द मेगास्पोर मदर सेल डज नॉट अंडरगो द मियोसिस, अगर वो मियोसिस हो ही ना तो मेगास्पोर मदर सेल डैप्लॉयड ही तो रहेगी। तो वो मेगास्पोर मदर सेल जो भी सेल बनाएगी वो डैप्लॉयड बनाएगी, और वो डैप्लॉयड एग या डैप्लॉयड सेल जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें? सीड में, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इस तरह से, और न्यूसेलस भी सीड बना सकता है। एंटीपोडल, हम ये कह सकते हैं कि एंटीपोडल भी किस में पार्टिसिपेट कर सकता है? सीड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये चीज़ें हर एक प्लांट के लिए हम नहीं, इसको एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक प्लांट जो है ऐसा करता होगा, किसी किसी में ऐसा देखा जाता है कि इस तरह का जो पार्ट होता है, इस तरह के जो फेनोमेनन है वो किसी किसी फैमिली में देखे गए हैं। देखो यहाँ पे इसलिए मैंने लिख रखा है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विंकलर। विंकलर ने इस टर्म को सबसे पहले बताया था। ठीक है, और ये जो टर्म है इसका मतलब ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको मैंने बताया ना एपोमिक्सिस क्या है। एपोमिक्सिस को हम कंसीडर नहीं कर सकते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में। अब देखो, अब जो सीड का फॉर्मेशन है विदाउट फर्टिलाइजेशन वो किन मेथड से हो सकता है, कौन कौन से ऐसे फिनोमेनन हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निक हैं जिसके थ्रू सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब देखो नॉन रिकरेंट, आपको पता है ना रिकरेंट जो चीज़ें चल रही हैं रिकरेंट, ठीक है, जो मतलब हैं जो चलती हैं रिकरेंट है। नॉन रिकरेंट आपको मैंने अभी बताया ना कि जो एग है वो तो जाइगोट बनाने के बाद सीड में चेंज होगा, लेकिन सिनर्जिड मोस्टली सीड में चेंज नहीं होता। एंटीपोडल सेल सीड में चेंज नहीं होते हैं, पोलर न्यूक्लियस ये सब सीड में चेंज नहीं होते। लेकिन अगर ये सब एम्ब्रियो बना लें,
अगर जो है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस फ्रॉम हैप्लॉयड एग, आपको मैंने अभी बताया ना, हैप्लॉयड एग जो है वो किस में चेंज हो सकता है, सीड में चेंज हो सकता है। सिनर्जिड सीड बना ले, एंटीपोडल सीड बना ले, पोलर न्यूक्लियस भी विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बना सकते हैं, एम्ब्रियो या सीड बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो सिनर्जिड हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं, न्यूसेलस हैं, ये सब किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीड के फॉर्मेशन में। क्लियर है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये नॉन रिकरेंट है, मतलब हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये कंसीडर नहीं कर रहे थे कि एंटीपोडल सेल भी सीड बना सकता है, सिनर्जिड भी सीड बना सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये जो मेथड है इनको हम नॉन रिकरेंट बुलाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिकरेंट में आपको पता है एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में डायप्लॉइड सेल्स होते हैं। जो एम्ब्रियो सैक है वो डायप्लॉइड सेल से ही तो डिराइव होता है। ठीक है? जो एम्ब्रियो है अगर वो डायरेक्टली बन जाए, मतलब जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली बन जाए बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी मियोटिक डिवीज़न के, पूरा जो एम्ब्रियो सैक है, जो उसमें एग सेल है, मतलब जो डायप्लॉइड सेल्स हैं, वो अगर डायरेक्टली किस में बन जाए, सीड में फॉर्म हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिकरेंट मेथड, रिकरेंट टेक्निक है किसकी, एपोमिक्सिस की। ठीक है? अब आ जाओ एपोस्पोरी। नेक्स्ट जो मेथड है उसमें क्या है, एपोस्पोरी में क्या होगा कि आपने एक प्रोसेस पढ़ रखा है, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है? ये टॉपिक थोड़ा सा अगर आप 1-2 बार सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? टिपिकल नहीं है ये क्योंकि नेचुरल, देखो ये नेचुरल फिनोमेनन है, हम नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो हैं। ठीक है? इसमें हम अलग से, हाँ, हम उस टेक्निक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछो कि ये कैसे, तो ये पॉसिबिलिटी प्लांट के साथ हो सकती है। प्लांट का जो जेनेटिक सिस्टम है वो इस तरह से होता है। ठीक है? तो इसीलिए प्लांट के साथ ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जो सीड के लिए फिक्स नहीं है, लेकिन वो तब भी एम्ब्रियो या सीड बना सकते हैं। ठीक है? अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस का जो चार्ट मैंने दिया था उसको एक बार देखना लेक्चर में। ठीक है? तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूसेलस जो होती है वो सोमेटिक सेल्स होती है, उसी में से कोई एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है, और वही मेगास्पोर मदर सेल जो हैप्लॉयड एग बना लेती है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो न्यूसेलस, जो सोमेटिक स्पोरोफाइट सेल है न्यूसेलस की, वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है एम्ब्रियो सैक में, और वो एम्ब्रियो सैक रिड्यूस्ड नहीं होगा, मतलब उसमें मियोसिस वगैरह कुछ नहीं होगा, और डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना लेगा बिना किसी मियोसिस के, बिना किसी मेगास्पोरोजेनेसिस के। ठीक है? और वो क्या बना लेगा, डायप्लॉइड एग बना लेगा। अगर न्यूसेलस की जो सोमेटिक सेल्स हैं वो डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में चेंज हो जा रही हैं, डायरेक्टली डायप्लॉइड एग में चेंज हो जा रही हैं, तो उसको बुलाते हैं एपोस्पोरी, मतलब बिना किसी रिडक्शन डिवीज़न के। ठीक है? तो इस तरह से जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा डायप्लॉइड एग से, उसी को एपोस्पोरी बुलाते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है, यही सबसे कॉमन मेथड है। ठीक है? एपोमिक्सिस मतलब एपोमिक्टिड सीड्स को प्रोड्यूस करने का। क्लियर है? तो इस तरह से एपोमिक्सिस सीड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है? एपोमिक्सिस मतलब, अब देखो एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में क्या डिफरेंस है। पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन एपोमिक्सिस में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। क्लियर हो गया? तो एपोमिक्सिस क्लियर हो गया तुम्हें, एपोमिक्सिस क्या है। ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, जैसे एस्टेरिया और ग्रासेस, ये कुछ ऐसे सम स्पीसीज, मैंने यहाँ पे लिख रहा है ना सम, हमेशा ये हर एक प्लांट में नहीं देखा जाएगा एपोमिक्सिस कुछ ही प्लांट में देखा जाता है जिनमें ऐसा कुछ हो सकता है। वो कैसा हो सकता है, वो हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, वो जेनेटिक सिस्टम की वजह से हो सकता है, वो इंटरनल फैक्टर हैं, उसमें हम कुछ ऐसा मतलब उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है? अब देखो इम्पॉर्टेंस क्या है। पहला, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो फॉरेन कोई सेल तो आई नहीं, इसीलिए कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता एम्ब्रियो में। जो भी प्लांट है उसमें फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो सेम प्लांट ही सीड में चेंज हो गया, मतलब सेम प्लांट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेम एज सीड में ट्रांसफॉर्म हो गया, सॉरी सीड में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसीलिए जो भी पेरेंट होंगे वो क्लोन्स होंगे। जैसे आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ रखा है, जैसे आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है, समझ में आया, जैसे आपने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रखा था, बी में पढ़ रखा था आपने, इंसेक्ट्स में पढ़ रखा है पार्थेनोजेनेसिस, वैसे यहाँ पे भी क्लोन्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद ये जो, जैसे कोई हाइब्रिड वैरायटी अगर आपने डेवलप कर ली तो उस हाइब्रिड वैरायटी को रिटेन करेंगे, वो हाइब्रिड वैरायटी चेंज नहीं होगी। समझ में आया? तो ये 3 इंपॉर्टेंस, ये लास्ट वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको कि हाइब्रिड वैरायटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है
कि हाइब्रिड वैरायटी का मतलब क्या है। जैसे मान लो कोई वैरायटी है, उसको आपने बी वैरायटी से क्या किया है, क्रॉस करवाया। अभी मैंने आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स बताए थे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग से हम इन दोनों प्लांट को क्रॉस करवा सकते हैं। इन दोनों प्लांट को जब हम क्रॉस कराएंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा, जो सीड आएगा, वो किसका रिज़ल्ट होगा, मतलब वो कैसा सीड होगा, हाइब्रिड होगा। क्यों हाइब्रिड होगा, क्योंकि आपने दो डिफरेंट वैरायटी को क्रॉस करवाया है। अगर आप दो डिफरेंट वैरायटी को क्रॉस करवा रहे हैं, दो डिफरेंट कैटेगरी के प्लांट को क्रॉस करवा रहे हैं, तो आपको कैसे सीड मिलते हैं, हाइब्रिड सीड मिलते हैं। समझ में आया। लेकिन जैसे आपने 10th में पढ़ रखा है कि कैपिटल टी को जब हम स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हाइब्रिड है कि नहीं है, ये हाइब्रिड है। लेकिन जब इसी हाइब्रिड वैरायटी को आप जो है नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो करते हो तो आपको ये कंडीशन भी मिल जाती है, मतलब ये हाइब्रिड वैरायटी किस में चेंज हो गई, प्योर में चेंज हो गई। इसका मतलब है कि हाइब्रिड वैरायटी जो कन्वेंशनल मेथड है, अगर हम उनके थ्रू हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करेंगे तो वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई वैरायटी है जिसमें ये है, दोनों ट्रेट है, मतलब ये हाइब्रिड है, इस हाइब्रिड वैरायटी को जब आप ग्रो करोगे तो नेक्स्ट जो प्रोजेनी होगी उसमें ये प्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेनी में ये क्या हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सेग्रीगेशन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो जो भी हाइब्रिड सीड्स जो है वो कन्वेंशनल मेथड से डेवलप किए जाते हैं, उनके जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको ग्रो करने पे, उनको सो करने पे आगे जाके वो क्या हो जाएंगे, वो प्योर हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, कन्वेंशनल मेथड से हो रहा है। और अगर हम उस कन्वेंशनल मेथड को अप्लाई करेंगे तो वो सीड जब हम ग्रो करेंगे तो उसकी जो प्रोजेनी आएगी, ठीक है, उसमें वो प्योर हो जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे प्योर हो जाएगा, वो हाइब्रिड नहीं रह जाएगा। मतलब हाइब्रिड वैरायटी को रिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मान लो आपने कोई वैरायटी डेवलप की, वो हाइब्रिड है, सपोज़ ये वैरायटी क्या है, हाइब्रिड है। अब इस वैरायटी ने सीड का प्रोडक्शन किया। सीड का प्रोडक्शन किस मेथड से किया, एपोमिक्सिस मेथड से किया। अब बताओ, एपोमिक्सिस में कोई फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं होता। इसका मतलब है जो हाइब्रिड वैरायटी है, अगर हम, और तुम्हें पता है ये क्लोन होगा, जो भी सीड प्रोड्यूस होंगे वो उसके क्या होंगे, क्लोन होंगे। समझ में आया। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, मैं केवल एग्जाम्पल ले रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी का। अगर कोई हाइब्रिड प्लांट है, अगर हम उससे एपोमिक्टेड सीड प्रोड्यूस करवा लें, एपोमिक्टेड सीड्स का प्रोडक्शन करवा लें, तो वो जो सीड होगा वो उस प्लांट का क्लोन हो जाएगा और वो कभी भी सेग्रीगेट नहीं होगा। इसका मतलब है अगर हम जो कन्वेंशनल मेथड से जो हमने हाइब्रिड सीड्स का फॉर्मेशन करवाया है, हाइब्रिड प्लांट का जो फॉर्मेशन करवाया है, अगर हम उसमें एपोमिक्सिस टेक्निक को इंड्यूस कर दें और एपोमिक्टेड सीड्स को हम वहाँ पे कलेक्ट कर लें, हम एपोमिक्टेड सीड्स को ग्रो करें, तो ऐसी कंडीशन में वो हाइब्रिड वैरायटी रिटेन कर जाएगा, वो हाइब्रिड वैरायटी फिर प्योर, मतलब वो सेग्रीगेट नहीं होगी। समझ में आ गया। तो ये एडवांटेज है किसकी, एपोमिक्टेड सीड्स की, किस पे, हाइब्रिड सीड्स पे। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी सीक्वेंस में मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ जो हाइब्रिड सीड्स के, जिसको उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला तो प्रोजेनी में वो जाके प्योर हो जाएगा, जब उसकी प्रोजेनी आगे आएगी तो वो प्योर हो जाएगी। तो फार्मर बेचारा हाइब्रिड सीड्स को ख़रीद के लेके आ रहा है, अब उसने बोया, और जब बोया तो फिर जब उसको उस प्लांट से फिर से सीड्स मिलेंगे, अब उन सीड्स को वो हाइब्रिड वैरायटी एज अ हाइब्रिड वैरायटी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तो उसका सेग्रीगेशन हो गया, उसमें तो उसका सेपरेशन हो गया, अब वो हाइब्रिड नहीं रह गए। और दूसरा क्या है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी में बहुत ज़्यादा टेक्निक इन्वॉल्व होती है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए वो क्या है, कॉस्टली भी है, एक्सपेंसिव है फार्मर के लिए, और फार्मर के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए अगर हम एपोमिक्सिस मेथड को इंड्यूस कर दें, ठीक है, और उस मेथड से हम हाइब्रिड सीड्स का फॉर्मेशन करवाएं, तो ऐसी कंडीशन में फार्मर को वो जो सीड्स होंगे, एक तो वो चीप पड़ेंगे, दूसरा वो उन सीड्स को बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो प्योर नहीं होंगे, मतलब उनकी जो प्रोजेनी होगी उसमें उसका सेग्रीगेशन नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये एडवांटेजेस थी किसकी, एपोमिक्टेड सीड्स की ओवर द हाइब्रिड सीड्स, कि अगर हम हाइब्रिड सीड्स की जगह पे
हाइब्रिड प्लांट में अगर हम एपोमिक्सिस को इंड्यूस कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये जल्दी कोई बताता नहीं है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में दे रखा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना एक बार और वीडियो को देख के, ठीक है। अब आ जाओ, बस एक और प्रोसेस बचा है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है, बट कंसीडर इट, इसको कंसीडर कर लो, इसलिए मैं हाँ, अब यही लास्ट है, बस यही पढ़ लो। अब देखो फिर से नाम पे ही आ जाओ, पॉली मतलब मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा है। एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो अगर एक से ज़्यादा है, वैसे तो हमें पता है सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन अगर एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हैं तो उसी कंडीशन को क्या बुलाते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। सब लोग घर पे हैं, सब लोग ऑरेंज खा रहे होंगे, ऑरेंज सस्ता भी है, और आज ऑरेंज के सीड्स को कलेक्ट कर लेना, ठीक है। ऑरेंज सीड्स को कलेक्ट करके उसको ड्राई कर लेना, सुखा लेना थोड़ा सा धूप में, ठीक है। सुखाने के बाद उसको हाथ में लेना, बहुत बहुत केयरफुल रहना, आपको केयरलेसनेस नहीं दिखानी है। आप सीड को लेके किसी चॉपिंग प्लेट पे रख लेना, किसी प्लेट पे रख लेना, और रेज़र के हेल्प से, ब्लेड की हेल्प से उसको स्क्वीज़ करना, उस ऑरेंज के सीड को स्क्वीज़ करना। स्क्वीज़ मतलब उसको काटने के इन द सेंस उसको पूरी तरह से मत काट देना, उसको जैसे होता नहीं कोई चीज़ अगर हल्का सा टीयर करके देखते हैं, तो वही स्क्वीज़ करना है आपको सीड को जब स्क्वीज़ करोगे ना, तो अब देखो ऑरेंज का क्या है? सीड है, सीड के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। जब आप ऑरेंज के सीड को स्क्वीज़ करोगे ना, तो उसमें ऐसे दिखेंगे, मतलब उसमें एक एम्ब्रियो नहीं दिखेगा, उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो दिखेंगे, 3 या 4 एम्ब्रियो दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा भी एम्ब्रियो हो सकते हैं, और इसी कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब इतने एम्ब्रियो ज़्यादा कैसे हो गए? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि जो एग सेल है वही फर्टिलाइज़ करके क्या बना लेती है? एम्ब्रियो बना लेती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो न्यूसेलर सेल्स हैं, आपने पढ़ रखा है ना, जो न्यूसेलर सेल्स होती हैं एम्ब्रियो सैक के ऊपर जो होती हैं, वो न्यूसेलर जो सेल्स होती हैं वो भी एम्ब्रियो बना लेती हैं। साइट्रस और मैंगो में ये कंडीशन देखने को मिलती है कि उसमें जो न्यूसेलर सेल्स हैं वो भी क्या बना लेती हैं? एम्ब्रियो बना लेती हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से ये बड़ा टॉपिक था, इसमें आपको थोड़ा सा जो डाउट होगा, थोड़ा सा जो कम क्लियर होगा, वो एपोमिक्सिस के बारे में होगा। लेकिन एपोमिक्सिस मैंने आपको बताया ना कि जो मेथड है उसमें जो डिफरेंट जो सेल्स हैं एम्ब्रियो सैक में, उनका वो अगर सीड में फॉर्म हो जाए, सीड में उनका फॉर्मेशन हो जाए, अगर वो हैप्लॉइड कंडीशन में हैं तो हैप्लॉइड सीड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अगर उनका रिडक्शन ना हो, ठीक है, अगर एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन होता है वो रिडक्शन डिवीज़न से होता है, मियोसिस से होता है, अगर वो रिडक्शन डिवीज़न से उनका फॉर्मेशन ना हो तो डैप्लॉइड सेल्स होंगी, और वो डैप्लॉइड सेल्स डायरेक्टली किस में चेंज हो सकती हैं? सीड में चेंज हो सकती हैं। जैसे ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में चेंज हो जाता है, वैसे ही ये सेल्स भी विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में चेंज हो सकती हैं? सीड में चेंज हो सकती है। बस यही एक टॉपिक आपको थोड़ा सा दिमाग में पिंच करेगा, लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, वो टिपिकल नहीं है, एक फिनोमिनन है वो, बस उसको एज अ फिनोमिनन की तरह उसको आपको तैयार करना है, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से ये वीडियो भी लंबी हो गई है, लेकिन प्लीज़ इसको कंसीडर करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जब पढ़ाता रहता हूँ तो एक फ़्लो में रहता हूँ। अब पता लगा एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया और नेक्स्ट डे पढ़ाया, तो वो उसकी कनेक्टिविटी उसकी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, आपको पता है। तो आप इस वीडियो को, आपको लगे कि 20 मिनट 25 मिनट देखने के बाद आपको लगे कि हाँ हमें ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको वहाँ पे पास कर दीजिए, उसको वहाँ पे आप रोक दीजिए, और फिर से नेक्स्ट जो उसका पार्ट है वो देख लीजिए। तो उसको आप 2 पार्ट में देख लीजिए, लेकिन प्लीज़ इसको आप जो है लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, ठीक है, ताकि क्लास 12 की जो क्लासेस हैं वो एक्चुअल रियल क्लासेस चल नहीं पा रही, लेकिन मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि आपको वर्चुअल क्लास भी रियल क्लास की तरह लगे। जब आप इसको पूरी तरह से फिर से एक बार पढ़ोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, जब आप अपने रेगुलर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन मैं एक सेशन 10 या 15 मिनट का फिर से लेके आऊँगा इसी चैप्टर का कल, जिससे मैं आपके जो डाउट्स होंगे वो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा कम क्लियर हुई होंगी, ठीक है, वो मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको मेहनत तो करनी है बहुत, और ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए करते हैं,
ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने गार्जियन के लिए खूब मन लगा के पढ़िए, बहुत हार्ड वर्क दिखाइए, ऑनेस्ट रहिए, अपने स्टडी के लिए ऑनेस्ट रहिए। ये नहीं कि पता लगा आप 5 घंटे बुक लेके बैठे हो और आपने पढ़ा कुछ नहीं, केवल आप सोशल मीडिया पे हो। तो प्लीज़ ऑनेस्ट रहिए अपनी पढ़ाई को लेके, कामयाब होइए और उनके लिए कामयाब होइए जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। ठीक है। सो विद दिस मोटिवेशनल कोट अगेन आई एम एंडिंग दिस सेशन। मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आप इसको प्लीज़ इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा पूरा चैप्टर एक बार फिर से। यू विल गेट द असाइनमेंट, आपको मैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करा दूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन स्टे एट योर होम।